Hello everyone. Today I am going to teach you a very interesting and a very important topic, that is branding. Basically, this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of product and product mix. Okay? So, branding is the most important decision that a marketer has to take in the area of product. So, देख लेते हैं branding होता क्या है. See, if all the products were to be sold in the market with their generic name means beta the purpose the product is serving. For example, shampoo is a generic name, but Sunsilk is the brand name. Same as toothpaste is the generic name, but Colgate Pepsodent is a brand name. So जेनरिक नेम होता है जो पर्पस वो सॉल्व करता है प्रोडक्ट. ओके, सो इफ ऑल द प्रोडक्ट वर टू बी सोल्ड विद देयर जेनरिक नेम, देन it will be very difficult for all of us to recognize whose product it is. So in order to be able to differentiate that which product belongs to which manufacturer, then each product has to be given a brand name. See, हम सबके भी नाम होते हैं. That is how it gives identity to us. Similarly, brand name gives an identity to the product. So, brand basically होता क्या है? See, brand एक नेम है, टर्म है, सिंबल है या कॉम्बिनेशन है इन सब का जो कि प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करता है, डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम डेट ऑफ देयर राइवल्स और कॉम्पिटिटर्स. ओके, सो ब्रांड जो है वो एक नेम है, टर्म है, सिंबल है, लोगो है, साइन है या इन सब का कॉम्बिनेशन है जो हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में प्रोडक्ट को फ्रॉम दैट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स. सो ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक नेम, लोगो एंड एन इमेज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस और अ कंपनी. ओके, सो ब्रांड क्या है? ब्रांड का मतलब होता है ये एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करता है. ओके, और ये बताता है कि प्रोडक्ट जो है वो राइवलरी प्रोडक्ट से बेटर है. ओके, मोर ओवर branding is much more than an only identification mark. Moreover, it is a seller's promise to deliver quality and satisfaction of buyer's expectation. Okay, with brand we can easily identify which all products belong to a particular company. Okay, with this we have another term of brand, that is trademark. See, trademark refers to a brand which is registered with the government under the Trademark Act 1999. So, trademark basically it is a part of the brand which is given legal protection so that no one else can use it. तो basically trademark क्या है? It is ये जो है ये ब्रांड का पार्ट है जो जिसको लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है जिससे कि कोई और इस पर्टिकुलर ब्रांड को यूज़ ना कर पाए. ओके, so here are some of the examples you can see of different trademarks. Okay, with this we have another concept, that is features of good brand name. एक अच्छा brand name के क्या features होते हैं, क्या qualities होती हैं. So while selecting a brand name, attention must be paid to the following these features. Okay, so first feature of a good brand name is it should be short, easy to pronounce, spell and remember. So brand name should be short and simple. For example, Rin, Vim, Ponds, Lux, Dettol, Surf. As long and complicated names are difficult to recognize and remember. So first feature will be that the brand name should be short and simple. और इसी को आप easily remember कर पाओगे क्योंकि अगर आप long name रखोगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं और आप इजली उन्हें रिमेंबर भी नहीं कर सकते. ओके, अनदर फीचर ऑफ अ गुड ब्रांड नेम इज दैट इट शुड सजेस्ट प्रोडक्ट बेनिफिट एंड क्वालिटी. सो ब्रांड नेम जो है आपका सजेस्टिव होना चाहिए. मीन्स इट मस्ट सजेस्ट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. आपके प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या बेनिफिट्स हैं, वो सजेस्ट करना चाहिए आपके प्रोडक्ट को. फॉर एग्जाम्पल, उजाला मीन्स it suggests brightness. Same as Hajmola, it suggests digestive property. Okay,
Another feature of good brand name is that it should be distinctive. Means the brand name should be unique and distinctive. The brand name should be very different and should not lose its identity. Okay, for example Ariel, Tide, Zodiac, Safari, etc. आपका जो ब्रांड नेम हो बिल्कुल यूनिक हो, अलग हो. ओके, another feature of a good brand name is that the brand name should be selected after considering its name, its meaning in other languages and cultures. ओके, सो आपका ब्रांड नेम जो है तभी सेलेक्ट करना चाहिए जब आपने उस पर्टिकुलर नेम का मीनिंग जो है अदर लैंग्वेजेस और कल्चर में देख लिया हो. ओके, मोर ओवर आपको वो नाम अवॉइड करने चाहिए जो कि गलत मैसेज देते हों. जैसे कि आपका जो ब्रांड नेम है नोवा, इट इज़ गिवन टू एन एम्बेसडर कार विच मीन्स डजेंट गो इन स्पेनिश. सो आपको ऐसे नाम बिल्कुल भी चूज़ नहीं करने चाहिए ब्रांड के लिए. ओके, another feature of a good brand name is it should be versatile to accommodate new products. सो आपका पर्टिकुलर ब्रांड का नेम जो है वर्सेटाइल होना चाहिए. मीन्स इट कुड ईजली अकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो सच एज मैगी नूडल्स. ओके, मैगी मसाला, मैगी सॉसेज. ओके, सो आपका जो भी नया प्रोडक्ट हो वो इतना वर्सेटाइल हो कि उसमें न्यू प्रोडक्ट्स अगर लॉन्च हो रहे हैं तो वो अकोमोडेट हो जाए. ओके, another feature of a good brand name is it should have staying power. means आपका जो पर्टिकुलर ब्रांड नेम है वो बहुत जल्दी आउटडेट ना हो. उसका जो भी पावर है, स्टेइंग पावर, वो अच्छा होना चाहिए. ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि व्हाट शुड बी द क्वालिटी एंड फीचर ऑफ अ गुड ब्रांड नेम. विद दिस वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांड और यू कैन से ब्रांड नेम स्ट्रेटजीज. हमको किस तरीके की ब्रांड नेम रखना चाहिए. सो फर्स्ट इज इंडिविजुअल ब्रांड नेम. See, under this strategy, different brand names are used for different products offered by a single company in the market. See, in this, the manufacturer may give different names to each of its product they are offering. For example, we have Hindustan Unilever Limited Company, which gives name as Lifebuoy, Lux, Pierce. सो इन्होंने क्या किया है, अपने जो भी पर्सनल वॉश के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब को अलग अलग नाम दिया है, जैसे कि लाइफ बॉय, लक्स, पियर्स. ओके, सो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट नेम सजेस्ट किया है. ओके, विद दिस वी हैव अनदर टाइप ऑफ ब्रांड नेम दैट इज अम्ब्रेला और फैमिली नेम. सो इट रिफर्स टू द यूज ऑफ सेम ब्रांड नेम फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स. सी, in this kind of brand name the company uses same brand name for all of its product it offers. Thus it overcome the need for name search or heavy expenditure on brand building. So यहाँ पे क्या किया है कंपनी ने, यहाँ पे कंपनी ने अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए एक ही नाम ब्रांड नेम सोचा है. जैसे कि आपका अमूल हो गया, सोनी हो गया. सो इन्होंने अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए एक ही नाम सेलेक्ट किया है. ओके, विद दिस वी हैव अनदर टाइप ऑफ ब्रांड नेम स्ट्रेटजी दैट इज सेपरेट फैमिली नेम. सो इन दिस सम कंपनीज क्लासीफाई द प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस बाय देम इन डिफरेंट फैमिलीज एंड देन दे गिव सेपरेट ब्रांड नेम टू ईच फैमिली. सी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने कंपनी ने क्या किया है, जो भी प्रोडक्ट उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं उन्होंने हर एक प्रोडक्ट को डिफरेंट फैमिलीज़ में डिफ्रेंशिएट किया और उन्होंने हर एक फैमिली को सेपरेट ब्रांड नेम दिया है. फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी यूजेस विमल फॉर शूटिंग एंड साड़ीज एंड दे यूज़ हारमोनी ब्रांड नेम फॉर कर्टन एंड लेगेसी ब्रांड नेम फॉर देयर रेडीमेड्स. ओके, with this we have another type of brand name that is company name combined with individual name. Okay, so under this strategy the advantage of both corporate branding and individual branding are joined together. So यहाँ पे company name के साथ individual name भी join कर दिया गया है. For example we have Kellogg's wheat flakes, corn flakes, chocos etc. So यहाँ पे Kellogg's company के साथ साथ उन्होंने individual name भी लगा दिया है. Same we have
Tata Group also, Tata Tea, Tata Salt, Tata Safari, Tata Steel. So these are the brand names which are combined with individual name also. Okay. With this, last but not the least type of brand is middleman brand, store brand, and private brand name. So what happens here? See, sometimes some manufacturers leave their product branding by the distributors or retail chain. So कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं वो ब्रांडिंग जो है डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल चेन पे छोड़ देते हैं प्रोडक्ट्स की. सो जो मिडल मैन होते हैं या जो रिटेल चेन्स होती हैं वो अपने प्रोडक्ट का खुद नाम जो है वो रखती हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेस्टी ट्रीट ब्रांड ऑफ बिग बाज़ार. ओके. सो आई होप आपको क्लियर हो गया है डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो होती हैं ब्रांड नेम की. विद दिस वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग दैट इज़ एडवांटेजेस. सो आपने पढ़ा कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होती है, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़ ऑफ good brand name, and what are the different kinds of strategies we should follow to keep our brand names. So अब हम पढ़ेंगे कि ब्रांडिंग की एडवांटेजेस क्या हैं. यहाँ पे ब्रांडिंग की एडवांटेजेस हम दो तरीके से पढ़ेंगे. वन, हाउ इज़ ब्रांडिंग एडवांटेजियस टू मार्केटर्स एंड हाउ इज़ ब्रांडिंग एडवांटेजियस टू कस्टमर्स. सो फर्स्ट एडवांटेज इज given to marketer is that it enables product differentiation. So as I told you कि branding जो है हमें help करती है कि competitor के product से rival के product को differentiate करने में हमें help करती है. Okay. So first हमारा advantage यही है that it helps in distinguishing the firm's product from that of its competitor. Thus it secures and control its market. Okay. अगर आपको सनसिल्क शैम्पू पसंद है तो यू आर गोइंग टू बाई इट, एंड इफ़ यू लव टू यूज़ लोरियल शैम्पू you will go for that. Okay, so you can easily recognize what is Sunsilk and which shampoo is L'Oreal. Okay, so you can easily differentiate between the product. Another advantage is it helps in advertising and display programs. So आपका जो ब्रांडिंग है वो हेल्प करता है आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजिंग और डिस्प्ले प्रोग्राम के लिए. सी इफ़ you have no brand, then advertiser can only create an awareness about the generic product. See, अगर आपकी शैम्पू की कंपनी है तो आपका जो भी एडवर्टाइज़र होगा वो सिर्फ आपके जेनेरिक प्रोडक्ट शैम्पू के बारे में लोगों को अवेयर कराएगा, बट वो ये श्योर नहीं होगा कि आपके ही ब्रांड का शैम्पू बिकेगा या नहीं बिकेगा. ओके, because Sunsilk also a shampoo, L'Oreal is also a shampoo, Dove is also a shampoo, Tresemme is also a shampoo. So जब आप अपना पर्टिकुलर ब्रांड का शैम्पू सामने ले करके आओगे तो आपके ब्रांड का शैम्पू बिकेगा. ओके. Another advantage of branding is differential pricing. See, as when customers like and become used to a brand, they would agree to pay a little more for it than the competing product. So जब आप अपने ब्रांड के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, सो कस्टमर को अगर आपकी ब्रांड जो है वो पसंद है तो दे आर एग्री टू पे इवन मोर फॉर योर प्रोडक्ट देन दोज ऑफ द कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट. अगर आपका प्रोडक्ट जो है, सपोज़ यू आर ओइंग अ सनसिल्क कंपनी और आपने कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट के अंदर और आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल चल रहा है और आप उसके पर्टिकुलर प्राइजेस जो हैं वो मार्केट में राइज कर देते हैं, तो स्टिल customers are used to about your product, so they will purchase it than those of their competitors product. Okay, with this we have another advantage of branding, that is it will help in introduction of a new product also. So जब आपका ब्रांड का अच्छी ब्रांडिंग होती है, आपका गुडविल अच्छा होता है, आपकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होती है और आप अपने ब्रांड की ग्लोरी को इन्जॉय कर रहे होते हैं, सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट ऑल्सो अंडर दिस पर्टिकुलर ब्रांड. ओके. With this we have some advantages to customers also regarding this branding, that it helps in product identification. See, if customer is satisfied with a particular brand, he will not make a close inspection every time. So अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड पसंद है
तो आप जाहिर सी बात है आप उसी ब्रांड की चीज़ों को यूज़ करना पसंद करोगे और आप हर बार हर एक प्रोडक्ट के लिए उस पर्टिकुलर ब्रांड को इंस्पेक्ट नहीं करते हो, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज हो जाता है. ओके, another advantage of customer is it ensures quality. So deviation in quality, customers can have a recourse to the manufacturer and marketer, therefore increase confidence and level of satisfaction of the customers. So as you know that branded products जो हैं वो quality provide करते हैं. आपके जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी का है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ब्रांडिंग जो है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, ये एक सेलर का प्रॉमिस है कि वो क्वालिटी और क्वालिटीड प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को दे रहा है उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पे इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का पूरा सेटिस्फेक्शन हो रहा होता है प्रोडक्ट से. ओके, another advantage to customer is that it is a status symbol. So as you know that branded product जो होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, so customer completely feel proud to use that particular product or under the particular brand. So it also increases the level of satisfaction of the customers too. Okay, so I hope आपको क्लियर हो गया है ब्रांडिंग क्या होता है. So go through your books, read it from there, and if you still have any query, any doubt regarding this particular concept, please ask your queries to me. And if you find this video helpful, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.